Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru grade 10 students. This is the second video of everyday mathematics. In this video we will be solving two questions, two past paper questions, and we will also be discussing the concept of simple interest in this video. क्योंकि दो पार्ट्स जो है इन क्वेश्चंस के वो सिंपल इंटरेस्ट के हैं, तो उनका भी थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे. ऑल्दो वी हैव डन इट इन द क्लास, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं जो है वो इन इस वीडियो में भी इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा कॉन्सेप्ट. So let's just begin with the first question. In the first question, we have a camera that is on sale. The original price or the mark price of the camera was $400. Now the camera, since it is on sale, so now the new price is $280. In the first part, we have to find the percentage reduction in the price of the camera. Again, the terminology percentage reduction. In the previous video, I told you that there is a simple formula for these type of things: percentage increase, percentage decrease, percentage discount, percentage saving. We also discussed the formula in the previous video as well. We just have to find the difference divided by the original value multiplied by 100. This is the formula. And since it was percentage saving, so we were finding percentage saving, but this time we are finding percentage reduction. So we will just find the difference between these two prices and then divided by the original value, which is the mark price, that is 400, multiplied by 100 will give us the percentage reduction. And in the second part, we have to find the simple interest after 8 months. So we will be discussing the concept of simple interest in the second part, inshallah. So let's just begin with the first part. In the first part, I will just use the formula, just put the values in the formula. Percentage reduction is equals to difference. How can I find the difference? I can find the difference by subtracting these two values. The first value, or the mark price original value, is 400 minus 280, and divided by the original value. The original value was 400 multiplied by 100. Since we are finding percentage, 400 minus 280 will give us 120. 120 divided by 400 multiplied by 100. And since we are not allowed to use a calculator, this is a paper one question, so I have to simplify it. This will be 100 times 4 is 400. So, and 400 on being divided, this will give us 30. So the answer is 30%. The percentage reduction, the percentage reduction in the price of the camera is 30%. सेकेंड पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको सिंपल सा ये बोला था कि इंटरेस्ट जो है वो समझो एक तरह से फीस होती है, एक तरह से पैसे होते हैं जो आपको दो कंडीशंस में जो है वो आपको समझने पड़ते हैं. एक तो इंटरेस्ट की वो कंडीशन होती है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में रखवाते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए. आपके पास एक जो है वो एक अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो अमाउंट जो है वो बढ़ता रहे, तो आप क्या करते हो, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक में रखवा देते हो, और बैंक जो है फिर आपको बदले में जो है वो एक इंटरेस्ट देता है पर ईयर, ताकि आपकी अमाउंट जो है वो बैंक में बढ़ती रहे. तो एक तो ये कंडीशन हो गई इंटरेस्ट की, जिसमें आप जो है वो इंटरेस्ट को कलेक्ट कर रहे हो. अब आपकी मर्जी है, अगर आप इंटरेस्ट कलेक्ट करके खर्च करते रहोगे तो आपकी अमाउंट जो है वो उतनी रहेगी एज इट इज जितनी आपने स्टार्टिंग में रखवाई थी. अगर आप अपने इंटरेस्ट नहीं लोगे तो वो बैंक में जमा होता रहेगा, और आपकी अमाउंट जो है वो बैंक में करंट जो अमाउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी पर ईयर के हिसाब से. अच्छा, सेकंड केस हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर आप जो है वो बैंक से पैसे बोरो भी करते हो. उस केस में आपको बैंक को जो है वो एक इंटरेस्ट देना पड़ता है. मतलब बैंक आपको पैसे तो दे देगा इस्तेमाल करने के लिए, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लोगे उससे, लेकिन आपको पर ईयर जो है वो बैंक को एक अमाउंट देनी पड़ेगी. तो क्योंकि आपको जो है वो आप जो है वो बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो, तो बैंक को भी आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. तो कंपनसेट करने के लिए आपको एक अमाउंट देनी पड़ती है बैंक को, जो कि पर ईयर के हिसाब से होगी. वो बैंक डिसाइड करेगा कि कितना मुझे जो है वो अमाउंट चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि आपने बैंक से पैसे लिए हुए हैं और आपको वो अमाउंट जो है बैंक को वापस करनी है आफ्टर सर्टेन टाइम. तो ये दो तरह के इंटरेस्ट थे, कि एक तो वो कंडीशन थी जिसमें आप इंटरेस्ट को कलेक्ट करते हो, और एक वो कंडीशन है जिसमें आप इंटरेस्ट जो है वो पे करते हो. बैंक जो है वो सिंपल एग्जांपल है, इसलिए हमने वो बैंक ली थी, क्योंकि बैंक में जो है वो सेविंग स्कीम्स होती है जिसमें लोग पैसा रखवा के इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं. और बैंक है ऐसी है कि जो बैंक जो है उसमें आप, अगर आपको पैसा चाहिए होता है तो आप जो है बैंक से पैसा लेके आप उससे बोरो करते हो, और फिर जो है पर ईयर के हिसाब से उनको इंटरेस्ट देते हो, ताकि आप जो है वो कंपनसेट कर सको, और फिर जब आपके पास इतना पैसा हो जाए तो आप रिटर्न करके उस इंटरेस्ट को खत्म कर सकते हो. तो इंटरेस्ट जो था वो बेसिकली टू टाइप्स का था. द फर्स्ट टाइप वाज सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर टाइप वाज द कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बस इतनी चीज याद रखो कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो आपके इनिशियल अमाउंट पे लगता है.
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों परसेंटेजेस की फॉर्म में होता है. इट कैन बी 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, जितना भी बैंक डिसाइड करे. और ये होता है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा आपके इनिशियल अमाउंट पे लगता है, वो अमाउंट जो आपने सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट करवाया है. ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट आपके करंट जो अमाउंट होता है आपके बैंक पे उस पे लगता है. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि आपका पैसा जो है वो बढ़ गया तो आपका इंटरेस्ट अगले साल भी बढ़ जाएगा. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्कुल इक्वल होता है, वो हर साल उतना ही आपको मिलता रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी इनिशियल अमाउंट पे. तो वो चेंज नहीं होता. इंटरेस्ट आपको हर साल उतना ही मिलेगा जितना आपको पहला साल इंटरेस्ट मिला है, एग्जैक्टली सेकंड ईयर भी उतना ही मिलेगा, थर्ड ईयर भी उतना ही मिलेगा, फोर्थ ईयर भी उतना ही मिलेगा, एंड सो ऑन. तो सिंपल इंटरेस्ट में ये थोड़ा सा नुकसान होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपके करंट बैंक अकाउंट पे डिपेंड करता है, तो आपका अमाउंट भी बढ़ता रहेगा तो आपका इंटरेस्ट भी हर ईयर जो है वो बढ़ता रहेगा. तो यहाँ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो क्वेश्चन था. तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है PRT/100. और इसमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट आई हो गया इक्वल्स टू पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है. प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप स्टार्टिंग में बैंक में डिपॉजिट करवाते हो. ठीक है, जितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कराया या बैंक से लिया है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा. आर जो है वो बेसिकली रेट है या इंटरेस्ट है जो कि पर ईयर लगता है. ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा जो है वो पर ईयर लगता है, मंथली भी लगता है कभी कभार, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इसमें ये जो आर है ये पर ईयर का रेट है, इंटरेस्ट है. इसको हम पर एनम भी कहते हैं या पर ईयरली भी कह सकते हैं. तो आर इज बेसिकली द रेट और द इंटरेस्ट पर ईयर, एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स. टी हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स होगा. अगर आपको मंथ या डेज में दिया जाएगा तो आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे. टी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे PRT/100. पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द रेट और द इंटरेस्ट पर ईयर, टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट जो थी वो $500 की थी, तो 500 इज द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की जगह पे मैंने 500 लिख दिया. आर इज बेसिकली 6%, पर ईयर 6%, तो आर की जगह पे मैंने 6 लिख दिया. एंड द टाइम वॉज 8 months, एंड आई नो दैट इन दिस फॉर्मूला द टाइम विल ऑलवेज बी इन ईयर्स. तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 8 को 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो 8 डिवाइडेड बाई 12/100 हो गया. और अब मैं इसको जो है वो सिंप्लीफाई करूंगा. सिंप्लीफाई करने में मैं ये दो जीरोस और ये दो जीरोस जो है वो रिड्यूस कर सकता हूँ. और उसके बाद जो है वो मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ. 2 times 3 is 6, एंड 2 times 6. और या फिर मैं इसको सिंपल भी 3 से रिड्यूस कर सकता हूँ. ये 3 1 3 हो गया और ये 3 2 6 हो गया. और 2 और 8 भी रिड्यूस हो जाएंगे. 2 times 1 is 2 एंड 2 times 4 is 8. तो मेरे पास सिर्फ 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा. 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट $20. तो इसका मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 8 मंथ्स के बाद वो $20 मिल रहा है वो $500 की इन्वेस्टमेंट पर. तो दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उस पर लगता है. अगर आपने 10 साल के लिए भी अपना पैसा रखवाया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल उसी इनिशियल अमाउंट पे लगता रहेगा और इंटरेस्ट आपको हर साल एक जैसा ही मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट का ये नुकसान है. कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चूंकि आपके करंट बैंक अकाउंट पे डिपेंड करता है, तो अगर आपका करंट बैंक अकाउंट बढ़ता रहेगा तो आपका इंटरेस्ट भी हर साल जो है वो बढ़ता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन P2 का है और नवंबर 2013 का. इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ बाईसाइकिल ए इज $620. एक बाईसाइकिल ए है जिसकी कॉस्ट जो है वो $620 है. द शॉपकीपर सेल्स इट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 45%. शॉपकीपर ने उसको सेल किया है और उसने जो है वो इतने पैसों में सेल किया है कि उसका प्रॉफिट बना है और उसका प्रॉफिट 45% बना है. तो वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह प्रोपोर्शन वाली एग्जांपल से कर सकते हैं. हमें पता है कि 620 जो है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस है. 100% है तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो 100 और 620 लिख दिया. अब उसने जो है वो प्रॉफिट बनाया है. प्रॉफिट जो है वो एडिशनल पैसे होते हैं, परसेंटेज इंक्रीज है बेसिकली प्रॉफिट. तो मैं क्या करूंगा 45 को 100 में ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 145. और मुझे 145 को निकालना है तो मैं यहाँ x लिख दूंगा और मैं उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. सिंस अब कैलकुलेटर मेरे पास अलाउ है तो मैं 145 को 620 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जल्दी से. 145 मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी 620,
और जो भी आंसर आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास जो प्राइस आ जाएगी दैट विल बी 899। इन्होंने भी इसी मेथड से सॉल्व किया, बस इन्होंने क्या किया है 45% निकाल के उसमें ऐड कर दिया है। तो सिंस दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, $899 आ रहा है, यहाँ भी जो है मेरे पास 899 ही डॉलर्स आंसर आ रहा है। तो चूंकि ये पेपर 2 का था इसलिए हमने कैलकुलेटर यूज कर लिया, और कैलकुलेटर यूज करके हमने जो है वो अपनी प्राइस निकाल ली कि जो उसने जो सेलिंग प्राइस है जो उसने बेची है वो बेची है $899 में। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक सेल लगी है जिसमें बाईसाइकिल बी जो है उसको रिड्यूस किया गया है, उसकी प्राइस को रिड्यूस किया गया है 2400 से $1596। और वही फिर हमसे परसेंटेज रिडक्शन पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 2400 माइनस 1596 किया तो 804 आया, और ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इज 2400, तो इसको 2400 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास परसेंटेज रिडक्शन आ गई। 33.5% इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑन बाईसाइकिल बी। बाईसाइकिल बी की प्राइस पे जो है वो इतना प्राइस रिड्यूस किया गया है। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है टैक्स ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल सी इज चार्ज एट 20% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। मतलब एक बाईसाइकिल सी है जिसपे टैक्स लग रहा है 20% का, ठीक है। और टैक्स लगने के बाद आफ्टर द टैक्स जो प्राइस मैथ्यू ने पे की है वो है $1080 फॉर दिस बाईसाइकिल। मतलब 20% टैक्स लग चुका है, और आफ्टर टैक्स लगने के बाद जो है वो मैथ्यू ने जो प्राइस पे की है दैट इज $1080। आपसे कह रहा है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालो। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, जो टैक्स लगने से पहले की प्राइस क्या थी। तो अगेन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही करेंगे, बिल्कुल यहाँ भी इन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही किया हुआ है। तो सिंस ये जो प्राइस है $1080 इट इज आफ्टर द टैक्स, टैक्स जो है वो इंक्रीज है, मतलब टैक्स जो है वो एडिशनल मनी है, तो इसका मतलब है 20% एडिशनल है। तो 100 में मैंने 20 ऐड किया, तो 120 जो है जो 120% जो है वो उसकी प्राइस पे 1080 है, तो मुझे 100 पे निकालनी है। तो मैं जो है वो 100 पे एक्स लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि ओरिजिनल प्राइस होगी बाईसाइकिल की, दैट इज $900। यहाँ भी इन्होंने ऐसे ही किया है, 1080 को 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 120 किया है, तो इनके पास जो है वो $900 प्राइस आ गई है। दिस इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, जो कि टैक्स लगने से पहले की थी। लास्ट पार्ट में हमें जो है वो अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अदा इन्वेस्टेड $600 इन एन अकाउंट दैट अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। अब टाइम जो है वो हमें 3 ईयर्स दिया हुआ है, टी की वैल्यू 3 ईयर्स हो गई। दिस इज द अमाउंट, इनिशियल अमाउंट है, तो ये पी की वैल्यू हो गई। और वो कह रही है कि 3 ईयर्स के बाद द इन्वेस्टमेंट वर्थ इज 681। अच्छा, तो यहाँ जो है वो फाइनल अमाउंट भी दे दिया है कि 3 साल के बाद इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी अब 681 हो गई है, इनिशियल में 600 थी, 3 साल के बाद बढ़ के उसकी जो अमाउंट है वो 681 हो गई है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रेट, हमें आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो यहाँ जो है वो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे पी आर टी अपॉन 100, लेकिन यहाँ सिंस वी हैव टू फाइंड आर, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ये इनिशियल वैल्यू थी वो बढ़ के 681 हो गई है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 81 का। इसका मतलब है हमारा जो इंटरेस्ट है वो $81 का है, $81 का इंटरेस्ट हमें मिला है। तो 81 इज द वैल्यू ऑफ आई, या आई की जगह पे मैंने 81 लिख दिया क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। द वैल्यू ऑफ पी इज 600, पी की जगह पे मैंने 600 लिख दिया। आर मुझे फाइंड आउट करना है, आर की जगह पे आर लिख दिया। टाइम इज 3 ईयर्स, तो मैंने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 जब 81 से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बी 8100। 600 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 1800 हो जाएगा, और आर की वैल्यू निकालने के लिए 1800 को यहाँ भेज के डिवाइड कर दूंगा। तो द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर विल बी 4.5%। दिस इज द आंसर ऑफ माई फाइनल पार्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एवरीडे मैथमेटिक्स। दो क्वेश्चंस हमने और डिस्कस कर लिए, दो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आई होप ये वीडियोस आप जरूर देखोगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है थोड़ा सा बिल्डअप करोगे। अगर ऑलरेडी बिल्डअप है तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। डू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर। Inshallah, I will try to solve more questions. Until then, take care. Allah Hafiz. All the best.